اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان جو ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ جن دو طرح کے مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی، جنات میں سے کچھ شیطان ابلیس کے فوج ہیں، وہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں، تو خیر اس سے میں پناہ مانگتا ہوں اور آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ کی سب سے بہترین دعا جو ہر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی، رحمت، بے انتہا پیار اور برکت، کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں ہو، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ بہترین دعا ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے سب کے لیے۔ آج ہم قرآن کی سب سے عظیم سورہ فاتحہ کی بات کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ، ایسا کون مسلمان نہیں ہوگا جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے دو اہم نام الصلاۃ اور ام القرآن، قرآن کی ماں۔ تو ہم سوچتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کی ماں مطلب سب سے اہم۔ اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہم جنت چل جائیں گے، کافی ہے ہمارے لیے، اگر صرف ہم اس پہ عمل کر لیں، اس کو سمجھ جائے۔ اور دیکھیے جنت کی چابی ہے، کیسے ہے؟ کیونکہ ہر دور میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، اب پائے جاتے ہیں، اب پائے جاتے رہیں گے۔ اور کون ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہیں علم والے اور عمل والے۔ اور دوسرا طریقہ کا لوگ جو علم تو بہت حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے حساب سے چلتے نہیں یا اس کے خلاف چلتے ہیں۔ اور تیسرے طریقے کے لوگ کون ہیں؟ آپ اچھی طرح سے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جو لوگ صحیح علم تو حاصل نہیں کرتے لیکن بہت بھاگ دوڑ، محنت، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور سورہ فاتحہ بھی اسی کے بارے میں یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ ہی گیا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ ایک بہترین دعا بھی ہے۔ تو اس میں پہلا حصہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین تک۔ اور جب اس پہچان کو بندہ پہچان جاتا ہے، انسان پہچان جاتا ہے، تو اپنے آپ وہ اس غلامی کو قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی غلامی، صرف تیری ہی غلامی قبول کرتے ہیں، نہ ہم اپنی نفس کی غلامی کریں گے، ٹھیک ہے، نہ کسی حکومت کی، کسی کی بھی نہیں، ہم صرف تیری غلامی۔ اور غلامی سے مراد کیا ہے؟ غلام سے مراد ہے وہ انسان جسے کہا جائے بیٹھو تو بیٹھے، کھڑا ہو تو کھڑا ہو، مطلب اللہ کی مرضی کے حساب سے اپنی زندگی بتانا۔ سارے کائنات کا مالک ہم سے بہتر جانتا ہے، اور وہ جب ہمیں جینا سکھائے، جینے کا طریقہ سکھائے اور اس طریقے پہ ہم چلے تو وہاں کامیابی تو ہوگا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ دنیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی سے ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، تو علم تو حاصل کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میڈیکل کے بارے میں جان رہے ہیں، لیکن اس کا پریکٹس اگر نہیں کرے گا تو آپ سوچئے کیا ہوگا؟ فائدہ ہے؟ کچھ نہیں فائدہ۔ تو اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم جاننا، اللہ کون ہے وہ جان جائے گا بندہ تو خود بخود عمل کرنے لگے گا۔ تو علم والے اور عمل والے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو کامیابی کا سیرا دیا ہے۔ اب باقی دو طرح کے ناکامیاب لوگ، وہ ناکامیاب لوگ کون ہوں گے جو ہر دور میں پائے جاتے ہیں؟ مغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب ہم اس ٹکڑے پہ پہنچتے ہیں تو مغضوب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مغضوب وہ لوگ ہیں جو علم تو بہت حاصل کرتے، یعنی یہودی کے طریقے پہ بڑے عالم بنتے، بہت جانکاری حاصل کرتے، لیکن اس کے حساب سے چلتے نہیں یا تو اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں
इज़राइल मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी की तरह उन्होंने, इज़राइल और अमेरिका ने दुनिया में झूठ का वन वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रखा है, बना रखा है, ठीक है, जिसके खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी है, हक और बातिल की लड़ाई शुरू हो चुकी है। खैर ये मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा है कि नाकामयाब लोग कौन हैं, और उसमें से ज़्यादा नाकामयाब लोग कौन हैं? मखदूम, जिनको इल्म तो है लेकिन इल्म के हिसाब से वो चलते नहीं, जानते हैं लेकिन जानने के बावजूद भी वो काम करते नहीं, या तो उसका उल्टा काम करते हैं। और दौलीन कौन है? दौलीन वो लोग हैं जो लोग इल्म हासिल नहीं करते, सही इल्म नहीं है उनको, काम बहुत करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मिसाल ईसाइयों से की। आज देख लीजिए, ईसाई देखा जाए तो अमल में सबसे बेहतरीन है। कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस, कितने हॉस्पिटल्स, लोगों की खिदमत, लोगों की सेवा करने के लिए जो वो कर रहे हैं, यहाँ तक कि शादी भी नहीं करते, नन और फादरी बन जाते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं। लेकिन ये कुर्बानी इंसानों के लिए देते हैं, अल्लाह के लिए, जिसके पास हमेशा के लिए जाना है, उसके लिए क्या करते हैं? जो सही तरीका बता रहा है उसके लिए क्या करते हैं? जिनको अपने पास वापस बुलाने के लिए अल्लाह ताला ने सारे कायनात को बना दिया। कितने ही किताब उतारे, इससे पहले किताबें उतारी, तौरात, इंजील, जिसको बाइबल के नाम से जाना जाता है, ज़बूर, ठीक है, हो सकता है वेद। तो लेकिन क्या हुआ? पुरानी किताबों में फेरबदल कर दी गई, कुछ अभी भी सही तौर पे बाकी है। तो जब तक हम सही जानेंगे नहीं और उसके हिसाब से चलेंगे नहीं, तो कामयाबी नहीं है। तो ये तीन तरह के लोग हर दौर में पाए जाते हैं, इल्म वाले, अमल वाले जो कामयाब होंगे, जो इल्म तो हासिल करेंगे लेकिन उस पर चलेंगे नहीं, जो बुरी तरह से नाकामयाब होंगे, सबकी लानत, सबका अजाब उन पे होगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ अपना नाम भी नहीं जोड़ना चाहता। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने अपना नाम भी नहीं जोड़ा मखदूब के आगे। और दौलीन से आप समझ ही गए हैं, ठीक है, जो लोग इल्म रखते नहीं लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। तो असल कामयाबी इल्म वाले और अमल वालों को अल्लाह ताला ने दिया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने यही शुरू किया। सूरह बकरा में पहली 5 आयत मुसलमान कौन होते हैं, मोमिन कौन होते हैं, पहली 5 आयत बताता है। इसकी गहराई से समझने की ज़रूरत है। और एकदम बुनियाद से अल्लाह ताला पढ़ाई शुरू कर रहा है। जैसे भी पढ़ाई शुरू किया जाता है ABCD से, क ख ग से शुरू किया जाता है, उसी तरह से अलिफ लाम मीम, ये सब हरूफ हैं अरबी के, उससे पढ़ाई शुरू कर रहा है अल्लाह ताला। फिर डेफिनेशन सिखा रहे हैं, डेफिनेशन सिखाने के बाद डिटेल में आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं। यही तरीका है पढ़ाने का, स्कूल में जाए, कहीं भी जाए, यही तरीका पढ़ेगा। इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह बकरा भी पढ़ा रहे। और 3 तरह के लोग, पहले मुसलमानों की डेफिनेशन, मोमिनों की डेफिनेशन, फिर उसके बाद काफिर की डेफिनेशन, आयत नंबर 6 और 7 में काफिर कौन है उसका डेफिनेशन दिया है, ठीक है। उसके बाद आयत नंबर 8 से लेके 20 तक मुनाफिक की डेफिनेशन। और देखिए सूरह फातिहा में क्या कहे थे हम, जो अल्लाह ताला को जान गया, जिसको अल्लाह ताला का इल्म हो गया, उसने क्या कहा, थोड़ा याद कीजिए, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही गुलामी कबूल करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं हर काम में। जो काम हम कर रहे हैं, बहुत सारा काम हम नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें तेरी मदद चाहिए हमें, तेरी मदद के बिना वो हम काम नहीं कर सकते। वही चीज़ अल्लाह ताला आगे जाके सूरह बकरा में जब 3 लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना शुरू करता है, यही तरीका है, डिटेल में बात करना शुरू करता है, तो क्या कहता है, या अय्युहन्नासु अब्दु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ लोगों कहा अल्लाह ताला ने, सारे लोगों को कहा, सारे लोग, सारे इंसानों को कहा, इसमें मुसलमानों को नहीं कहा, सबको, क्योंकि सबके लिए है अल्लाह ताला का पैगाम। अल्लाह ताला सबको जहन्नम से बचाना चाहता है। तो अल्लाह ताला का सबको जहन्नम से बचाना चाहता है, तो कौन जहन्नम में ले जाना चाहता है? वो इब्लीस है, शैतान है, जो अपने चाल से अपने साथ खुद जहन्नमी हो गया और सबको जहन्नम ले जाना चाहता है। लेकिन सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह ताला की बात मानेंगे, उनके सिवा सारे के सारे जो इब्लीस की बात मानेंगे वो जहन्नम जाएंगे। जो अल्लाह की बात मानेंगे वो जहन्नम नहीं जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे और खुश हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, खुशहाल ज़िंदगी पाएंगे। तो हम समझ ही गए होंगे। और ये प्रैक्टिकल है, ज़िंदगी के अंदर भी हम देखते हैं। डॉक्टर का डिग्री लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है।
इल्म भी हासिल करना है, प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है, तभी फ़ायदा है। और इल्म ही हासिल करेंगे और फिर उसका उल्टा काम करेंगे, उस डॉक्टरी पेशा से हम गलत वायरस बनाना शुरू करेंगे और उस वायरस को दुनिया में फैलाना शुरू करेंगे, अपने साइंस के इल्म को गलत इस्तेमाल में, एटम बम बनाने में, न्यूक्लियर बम बनाने में इस्तेमाल करेंगे, तो देश का क्या होगा? वही होगा जो आज देख रहे हैं हम न्यूज़ चैनल्स में, दुनिया तबाह होगी। तो इसलिए हमारी जंग इब्लीस के साथ है, शैतान के साथ है, और उसको हम तभी लड़ सकते हैं जब हम सही इल्म हासिल करें और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बिताएं। तो आज बस यहीं तक बताना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसको हम समझकर, पूरे कुरान को इस नज़रिए से देखकर, सही गलत में फ़र्क कर हम अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको सही और गलत की फ़र्क समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सही इल्म हासिल करके उस पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मग़दूब और वलद्दालीन के तरीक़ों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।